इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। One minute, we are going to start our lecture. Now see over here, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स का लेक्चर सेकंड। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हमने कल कहा था जो भी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 हैं, एक्चुअली दे possess very high reduction potential value, that's E naught values, E naught values, standard reduction potential, जिसको हम SRP भी कहते हैं। SRP भी इसको कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, SRP। Halogens have very high value of P naught values, they have very high value of standard reduction potential. Means हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। Let me represent them with halogen. They possess a very high value of E naught. उनका जो E naught value है, that's very high. What does this mean? High positive value होता है। High positive value. What does this mean? This means that they have high tendency to accept electrons. They have high tendency, they have great tendency to accept electron. They have tendency to accept electron. This means that they have tendency to accept electrons. They have tendency to accept electrons. For example, हमारे पास फ्लोरीन है, it has the tendency to accept electron. It will form F minus. Similarly, हमारे पास क्लोरीन है, it has the tendency to accept electron. It will form Cl minus over here. Similarly, हमारे पास ब्रोमीन है, it has the tendency to accept electron. It will form Br minus. Similarly, हमारे पास आयोडीन है, it has the tendency to accept electron and it will form I minus over here. Thank you, sir, for using the black pen. Okay. So I minus, it will accept the electron, it will form I minus. Why they accept this electron? It is because their E naught value is very high. तो यहाँ पे इनका E naught value है, SRP जो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट्स हाई। तो अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा SRP पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का है, तो SRP ऑर्डर विल बी ओवर हियर, SRP order will be over here, chlorine reduction potential order, then that of chlorine, then bromine, then iodine. This is SRP value, E naught value. So fluorine has the highest tendency to undergo reduction. That means जो भी species reduce होती है, जिस भी species का reduction होता है, it itself acts as a good oxidizing agent. इस fluorine को reduction होती है, it will act as oxidizing agent. And this will act as oxidizing agent, means all these will act as oxidizing agents. Therefore fluorine has very high value of E naught. इसका ज्यादा वैल्यू है E naught का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, it has more tendency to undergo reduction. This is the order of tendency to undergo reduction. जिस भी स्पेशी का रिडक्शन होता है, खुद वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Therefore हम इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो आप मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का, जिसकी रिडक्शन ज्यादा होती, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो फ्लोरीन विल बी हाईली ऑक्सीडाइजिंग, इट विल हैव हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर। खुद इसकी रिडक्शन होगी, लेकिन दूसरे सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज करेगा, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ये दो ऑर्डर जो यहाँ पे हैं, ये आपको याद रखने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। Now see, because of its oxidizing nature, means it can react with water. Because of its oxidizing nature, it will have reaction with water. तो हमारे पास फ्लोरीन है, it can react with water. Similarly हमारे पास क्लोरीन है, it reacts with water. Similarly हमारे पास ब्रोमीन है, it reacts with water.
सिमिलरली हमारे पास आयोडीन है, इट रिएक्ट्स वाटर। अब मैंने यहाँ पे सबको क्यों मेंशन किया, सबको क्यों लिखा, इट हैज इट्स एप्लीकेबिलिटी, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो फ्लोरीन के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Now in these two cases, generally how the reaction takes place. Now see over here. This is my water. This is water, and it reacts with Cl chlorine. तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, यहाँ से क्या मिलता है हमें? Now see over here, this bond breaks. This bond breaks over here. यहाँ पे ये bond break होता है. We get OH minus. We get OH minus and we get H plus. तो यहाँ से हमें ये चीज मिलती है, OH minus and H plus. Now this OH minus reacts with Cl plus. It reacts with Cl. यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करो. It reacts with Cl, तो यहाँ से Cl minus आ गया. एक Cl plus, एक Cl minus, ये दो कंबाइन होके HCl बनाएंगे और ये दो कंबाइन होके HOCl बनाएंगे. ये दो कंबाइन होके तो यहाँ का प्रोडक्ट HOCl बनेगा और यहाँ का प्रोडक्ट HOBr बनेगा. These two products are easy. तो these two products इनका डिटर्मिनेशन इजी है. लेकिन फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता है. फ्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर लाइक दिस. व्हाई? बिकॉज फ्लोरीन इज हाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर. So in this case what happens, it breaks down water into H plus and oxygen ions. तो यहाँ से H plus और यहाँ से हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है. It breaks down into F minus H plus और यहाँ से हमें O2 मॉलिक्यूल मिलता है. This reaction is most important. ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर फ्लोरीन को वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो उस केस में आपको HOF नहीं मिलेगा. मीन्स ये हमारे पास जनरल रिएक्शन नहीं है. आप किसी भी हेलोजन को वाटर के साथ ट्रीट करो, यू विल नॉट ऑलवेज गेट HOX. You will not always get the compound like HOX. ये वाला compound आपका हमेशा नहीं बनेगा. This compound is formed in case of fluorine. This compound is formed in case of bromine. But in case of fluorine, what is formed? Oxygen is evolved. This indicates the oxidizing nature. This indicates its high oxidizing nature because this oxygen is used for oxidation of other substances. That's why fluorine is it has high oxidizing nature, indicative by this reaction. यहाँ पे इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे. अगर इसको 2 टाइम्स देंगे, दिस विल बी 2 2s are 4, so it will be 4 टाइम्स. तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 थे इसलिए मैंने इसको 2 टाइम्स दिया. यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन और ये बैलेंस हो गया. अब फ्लोरीन को बैलेंस करो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 टाइम्स है माइनस 2 times F minus. Since 4 positive ions है, therefore हमें 4 times F minus देखना है. So as to balance the electrons as well. That's why this reaction. Now in case of iodine, what is the nature of the reaction in case of iodine? अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई तो इसका उल्टा आयोडीन में. मीन्स आयोडीन वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है. आयोडीन रिएक्ट्स विद दिस प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट आपको फ्लोरीन के केस में मिलता है उसी प्रोडक्ट से आपका आयोडीन रिएक्ट करता है. मीन्स यहाँ ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. आयोडीन रिएक्ट्स विद H plus ion. It reacts with O2, H plus and O2. These are the products. ये तो प्रोडक्ट्स थे. ये तो प्रोडक्ट्स थे वाटर के. वाटर के जो प्रोडक्ट्स थे H plus and O2, इनके साथ आयोडीन रिएक्ट करेगा. मीन्स इसको हम लेंगे आयोड. I'll take it iodide ion. Iodide ion will react with like this. 4 times negative. This is 4 times plus. It will react with this. In this case, iodine is formed. In this case, iodine is formed, and we get water. Now, what does this reflect? ये reaction क्या reflect करती है? This reaction reflects that जो हमारा iodine है, is weak oxidizing in nature. It is weak oxidizing. It is weak oxidizing because it does not directly react with water to produce these type of compound. So आपको यहाँ पे बात समझ में आनी चाहिए. अगर हमारा HF है तो दो बातें आपको याद रखते हैं. मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाऊंगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर दे दो. मैं समझूंगा आपको कितनी बात समझ में आ गई. So the question over here is HF reacts with, sorry, the question over here is F2 reacts with water to produce a gas
known as A, and Cl2. Yeah, to give product A, I'll write to give product A. Cl2 reacts with water to give product B. The product A and B are option number 1 is. So the option number 1 over here is, option number 1 is HOF and HOCl. Option number second is O2 in both case. O2 in both case. Option number third is HOF and O2. And option number fourth is O2 and HOF respectively, HOCl respectively. Now tell me what will be the answer. Now this is how a question can be framed over here. Now Shafia fourth, Nilofer fourth, Hadia fourth. Very good, very good, very good, very good, very good, very good. Shafia fourth, Nilofer fourth. Very good. So you guys are doing good. Maria, Arhat, Adia. Very good. Very nice. So this is how we can reflect their oxidizing nature. Now one more thing by which we can reflect their oxidizing nature is this. So ये रिएक्शन हमने कई बार पढ़ी है बोर्न-हैबर साइकिल। ये रिएक्शन हमने कई बार पढ़ी है। तो मैंने कहा है जो भी हेलोजन्स होते हैं वो दे एग्जिस्ट इन द एटॉमिक स्टेट, therefore I will write the halogen as X2। तो पहले इस X और X के बीच में बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आई रिक्वायर एनर्जी। इसको अगर मुझे ब्रेक करना है इनटू एटम्स, आई रिक्वायर एनर्जी। So that energy which I require over here to break this molecule into gaseous form, into gaseous atom, that will be this. तो कन्वर्जन मेरी यहाँ पे ऐसे होगी, this is the conversion. So this energy which is required over here, it is called dissociation energy. यहाँ पे जो enthalpy required होगी, that will be called bond dissociation energy. Bond dissociation energy. Now tell me क्या मैं यहाँ पे 1/2 लिखूंगा, because मुझे एक gaseous atom बनाना है, molecule से एक gaseous atom बनाना है, therefore I will write 1/2 X2. So this energy will be 1/2 bond dissociation energy, 1/2 of BD energy, bond dissociation energy. ना इस बॉन्ड डेस्टिनेशन एनर्जी से जब हमने गैसियस एटम बनाया तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा दिस विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी, we will get X in gaseous state with electron. This term is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy is basically when an atom gains an electron when an isolated neutral gaseous atom. This is isolated, this is neutral, this is gaseous atom accepts electron. The amount of energy released is called electron gain enthalpy to form gaseous anion. तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें इसको और एनर्जी देनी पड़ेगी। That energy is in Born-Haber cycle, that energy is hydration energy. Hydration energy means ये it will react with water. तो यहाँ पे हाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन मतलब we will get this halide ion into aqueous state, इसकी हाइड्रेशन होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी हमें जो एनर्जी इसको यूटिलाइज करनी पड़ेगी that is known as hydration energy. तो you people know, आप मुझे बताओ हाइड्रेशन एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड करती है। Now tell me हाइड्रेशन एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। Now tell me जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। वेरी गुड आंसर्स आए यहाँ पे। साइज एंड चार्ज, वेरी गुड नीलोफर, वेरी गुड। साइज अपॉन चार्ज, वेरी गुड, दैट्स पोलराइजेशन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट इज पोलराइजेशन। Q by R, very good, Q by R, that is charge by size, it depends upon charge by size, Q by R. Now in case of halogens we have F minus. In case of halogens, we have F minus, we have Cl minus, we have Br minus, and we have I minus. So Q in this case is same, in सब में Q same है, -1, charge is -1, charge is -1, charge is -1, charge is -1. The thing that is different is R. तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो R इंक्रीज होता है। अगर R इंक्रीज होता है हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये वाली स्पेशीज कम बनेगी।
विल से विथ श्योरिटी, तो फ्लोरीन का साइज कम है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, साइज कम हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा. So over here we can see the hydration energy order will be fluorine, chlorine, bromine, iodine. Have you got this point? Hydration energy will be in this order. So this thing again reflects this thing again reflects the acceptance of electron, that is standard reduction potential, that is oxidizing nature. This thing again reflects that. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? टेल मी, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, विल मूव फॉरवर्ड, हम आगे थोड़ा जाएंगे अगर आपको ये बात समझ में आ गई. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. नंबर फर्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. यस सर, वेरी गुड. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट डिस्कशन होगा. नंबर फर्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ हैलोजेनस विद हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के साथ डिस्कस करेंगे. रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट में टेबल है, टेबल 7.9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें आएंगे. टेबल 7.9 को एक बार ही देखो, टेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बाद में देखना, मैं यहाँ डिस्कस करूंगा उस टेबल. ऑल हैलोजेनस दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन. हमारे पास कोई हैलोजन X है, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, reacts with the hydrogen. They form halides of the type hydrogen halides HX. तो यहाँ पे कंपाउंड मिलते हैं हमें HX. मतलब अगर फ्लोरीन होगा तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा? HF. अगर ब्रोमीन होगा we'll get the compound HBr, sorry, fluorine HCl. अगर ब्रोमीन होगा we'll get the compound HBr, and if we have iodine we'll get the compound HI. So these are the type of the hydrogen halides which are formed over here. Now see हमें क्या बताना है? नंबर फर्स्ट थिंग इन हैलाइड्स में हमें बताना है एसिडिक नेचर. Now tell me acidic nature. Now tell me acidic nature. मैं इसको A लिखूंगा, इसको B लिखूंगा, इसको C, इसको D. Now tell me acidic nature किसका ज्यादा है और किसका कम है? वेरी गुड, वेरी गुड. इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? Now tell me which one is most acidic. पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा. यस सर, DCBA, DCBA शाफिया. HI most acidic, HI most acidic, Maria, very good. तो DCBA, let us see DCBA. तो आपके आंसर्स आए यहाँ पे, लेट मी एक्सप्लेन. तो मैंने कहा था एक जनरल कंसेप्ट, मैंने आपको कहा था एक जनरल कंसेप्ट फॉर हाइड्राइड्स, जनरल कंसेप्ट फॉर हाइड्राइड्स कहा था. इन केस ऑफ हाइड्राइड्स, डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स साइज पे डिपेंड करता है. एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, मैं सिर्फ हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं, इन केस ऑफ हाइड्राइड्स अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. तो मुझे पता है यहाँ साइज हाइड्रोजन का सेम है, तो आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, देयरफॉर दिस विल बी मोस्ट एसिड. दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर. नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हो इन केस ऑफ हाइड्राइड्स, अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हो इन केस ऑफ हाइड्राइड्स, तो जो एसिडिक नेचर होता है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे HF है, अगर मेरे पास यहाँ पे H2O है, अगर मेरे पास यहाँ पे H3N है, these are the hydrides, hydride of this and this. तो फ्रॉम ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की. दिस इज मोर एसिडिक देन दिस एंड देन दिस. आपको ये बात समझ में आ गई? एसिडिक नेचर ऑफ दीज हाइड्राइड्स, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. नाउ अब आप मुझे बता, नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स. नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स. व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर? यहाँ पे मेरा HF है, यहाँ पे मेरा HCl है, यहाँ पे मेरा HBr है, और यहाँ पे मेरा HI है. तो मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स. नाउ टेल मी, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी. बॉन्ड कहाँ पे स्ट्रांग होगा? इन केस ऑफ HF, बिकॉज फ्लोरीन स्मॉल साइज एटम है.
तो यहाँ पे बॉन्ड वीक होगा, दिस विल बी लेस स्टेबल, सो द स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी लाइक दिस। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ये बात शॉर्ट नोट्स में डालना है इनको? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस। HF is most stable. Very good, very good, very nice. Bond strength. तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो थर्ड फैक्टर हम यहाँ पे देखेंगे इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इज बैक यहाँ से। अच्छा ना, एंड थर्ड केस विल डिटरमाइन देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा ऑब्वियसली। HF is more stronger than HCl, then HBr, then HI। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। नाउ द थिंग इज दैट वी हैव डिस्कस्ड देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने देखा HI is most acidic, then HBr, then HCl, then H। Now tell me guys, or here, इनका pKa ऑर्डर क्या होगा? pKa ऑर्डर, pKa ऑर्डर, इनका pKa। अच्छा पहले मुझे बता Ka ऑर्डर क्या होगा? Ka ऑर्डर क्या होगा इनका? Ka क्या होता है? आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड। जितना ज्यादा Ka होता है उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। तो Ka ऑर्डर विल बी Hi greater than HBr, greater than HCl, greater than HF। अगर pKa की बात करेंगे, pKa is inversely proportional to Ka, simple way to remember। अगर Ka ज्यादा है pKa कम है, therefore pKa ऑर्डर क्या होगा? टेबल में दिया हुआ है, इसलिए आ सकता है एग्जाम में pKa ऑर्डर HF का सबसे ज्यादा हो सकता है, देन HCl का, देन HBr का, देन HI का। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सॉरी, और हियर इट शुड बी HI। HI यहाँ पे होना चाहिए, HI। ऐसी यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, एक क्वेश्चन में यहाँ बनाऊंगा। ये मेरे पास एसिड्स हैं HF, HCl, HBr, HI, और यहाँ से मैं pKa वैल्यूज दूंगा। इन द सेकंड कॉलम आई विल गिव pKa वैल्यू -10। तो pKa वैल्यू मैं लिखूंगा यहाँ पे -9.5, pKa वैल्यू लिखूंगा 3.2 एंड pKa वैल्यू ऑफ -7.0। सबसे कम जिसका pKa वैल्यू वो HI होगा। सबसे कम क्या है? -10, तो दिस इज HI। सबसे ज्यादा जिसका वो HF होगा। सबसे ज्यादा क्या है? दिस इज 7.0। सबसे ज्यादा किसका है? 3.2 का। ना सबसे कम इन दोनों में जिसका है, अब इन दोनों में सबसे कम जिसका है वो HBr होगा। दिस इज HBr, दिस इज HCr। क्या ये कॉलम ए कॉलम बी मैच आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। क्या आपको ये समझ आ गया? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सर रिपीट। अरे यार इसमें क्या, जितना पीके वैल्यू कम होगा, जितना पीके कम होगा, पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। जितना के ज्यादा उतना पीके कम। तो के एच आई का ज्यादा है। अगर के एच आई का ज्यादा है तो उसका पीके वैल्यू सबसे कम, तो यहाँ पे आएगा सबसे कम -10। इसमें सबसे कम वैल्यू है, दैट्स व्हाई दिस विल कम। नाउ यू गॉट इट? क्या अब आपको बात समझ में आ गई? करेक्ट, यस। आजा सर, आजा, क्या आपको अब बात समझ में आ गई? पीके एंड के आर इनवर्स रिलेटेड हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, बहुत बार पढ़ा ना। उसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ। उसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ। ना टेल मी, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? जहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी। तो HI में बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, देन HBr, देन HCl, then HI, then HF। This is the bond length order. This is bond length order.
शॉर्ट नोट्स में डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज बॉन्ड लेंथ आर्ट, दिस इज बॉन्ड लेंथ आर्ट। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की कहानी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, किताब नहीं देखना, बुक नहीं देखना, मुझे डायरेक्टली बताओ, अपना लॉजिक लगा के बताओ। आया है एग्जाम में, जेई में आया है, नीट में भी आया है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। दैट्स व्हाई टेबल इज इंपॉर्टेंट। इस साल अगर आएगा एसिडिक ऑर्डर या पीके आएगा या मेल्टिंग पॉइंट आएगा ना, एच एफ, उसके बाद मेरे पास है HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI। ना टेल मी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा या बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे एच बॉन्डिंग होगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। दैट्स व्हाई इन द टेबल इट इज 293। दैट्स व्हाई इन द टेबल इट इज 293। उसके बाद, उसके बाद इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वीक इंटरेक्शंस पे। इन सब में कौन से इंटरेक्शंस हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे साइज पे डिपेंड करेगा। तो अगर इन तीन की मैं बात करूंगा, इन तीन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट HF का है, देन HBr का है, देन HCl का है। तो इन तीन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट HF का, HI का, देन HBr, देन HCl। आई विल राइट द ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद HI का, उसके बाद HBr का, उसके बाद HCl का। क्या ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया? दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। क्या ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया? HF क्यों आगे चला गया? HF ने क्यों लीड ले ली? HF ने क्यों कंटेस्ट जीत लिया? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? HF क्यों जीत गया यहाँ पे? HF क्यों जीत गया यहाँ पे? इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HI, नीलोफर क्या HI नहीं, HI नहीं। सो सर टेक्स्ट पे हाइड्रोजन आयोडाइड का ज्यादा है। अरे यार हाइड्रोजन आयोडाइड का कहाँ से ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट? नीलोफर नहीं, एक बार फिर देखो, मैं अब वैल्यूज लिखूंगा ना। दिस इज 293 बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज 238, सॉरी दिस इज 238। तो अब किसका ज्यादा है? तो किसका ज्यादा है? दिस इज 206, दिस इज 189। अब किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, आपने मेल्टिंग पॉइंट देखा। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, आपने मेल्टिंग पॉइंट देखा। यस दैट्स मेल्टिंग पॉइंट। अभी मेल्टिंग पॉइंट की बात ही नहीं हुई, अभी बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। गॉट इट नाउ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF, व्हाई इट इज मोर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाउ सी, नेक्स्ट चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरी बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। नाउ सी, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। नाउ लेट अस राइट अगेन these molecules: HF, HBr, HCl, HBr, HI। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स पहले लिखेंगे हम। HI का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है 222। HI का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है 185, 159, और इन दिस केस 190। तो यहाँ पे मुझे बताओ HF मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे HF का कम क्यों हो गया? जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? Now tell me over here.
Now see, in case of HF, we have van der Waals force of attraction. We have van der Waals force of attraction. Van der Waals force of attraction. Why? Because it exists in gas phase. We have van der Waals force of attraction. Therefore, इसका boiling point कम होता है. Sorry, इसका melting point कम होता है compared to HI. So the order becomes HI is more than that of HF. उसके बाद HBr, उसके बाद HCl बहुत ही important है. उसके बाद यहाँ पे HF का कम होता है, then HI यहाँ पे ज्यादा होता है. So boiling point में ज्यादा होता है, melting point में कम होता है. Melting point depend करेगा van der Waals force. Force of attraction यहाँ पे van der Waals force of attractions भी होते हैं. Melting point उस पर डिपेंड करता है. Boiling point हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फैक्टर पे डिपेंड करता है. So have you got it? Because यहाँ पे it exists in gaseous phase. Melting point में हमें इस कंपाउंड को gaseous फॉर्म में लाना है. तो गैस फॉर्म में लाके इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होगा, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में हमें इसको बॉइल करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज्यादा पॉसिबिलिटी है विद वाटर. हैव यू गॉट इट? क्या आपको ये समझ में आ गया? ये दो ऑर्डर है जो आपको किसी भी सूरत में याद रखने हैं. ये दो ऑर्डर है जो आपको किसी भी सूरत में याद रखने हैं. एग्जाम में आएंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर. जितने भी ऑर्डर मैंने आज बनाए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अभी से इसको नोट करो टेबल में, टेबल 7.9 में अभी से इसको नोट करो. क्या मैं आगे चलूं? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. भरत, यस सर. पीर मोमिना, यस सर. निखत दीपा, यस सर. क्या आपको ये दो ऑर्डर याद रह गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस टेबल को नोट डाउन करना मेरी तरफ से. ये मतलब आपको गिफ्ट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे. ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में, ये भी इम्पोर्टेंट है. मुझे बता, अगर हेलोजनस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे व्हाट विल दे फॉर्म? ऑक्साइड्स. तो यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो फ्लोरीन फॉर्म्स मेनली 2 ऑक्साइड्स ओवर हियर. एक बनाता है फ्लोरीन हमारा OF2 जो हमने पहले ऑक्सीजन फैमिली में देखा था, और वन मोर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड O2F2. फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली दीज 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स. फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली दीज 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स. मींस एक बनता है हमारा OF2 और एक बनता है हमारा O2F2. O2F2, दिस इज O2F2. एक बनता है O2F2, एक बनता है OF2. इन बोथ द केसेस फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट विल बी -1. More electronegative, this will be -1, and oxygen will be +2 over here. -1, that is +2. The same over here. Fluorine ज्यादा electronegative, -1, this will be +1. ये -1, this will be +1. Means in both cases fluorine will have -1 oxidation state. In both these cases fluorine will show -1 oxidation state. लेकिन अगर बात करेंगे इन एलिमेंट्स की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, they form different types of oxides. They form different types of oxides. एक बात आप और यहाँ पे याद रखो, जो OF2 है it's more stable than O2F2. This is more stable than O2F2. Then O2F2 at room temperature. Then O2F2. This is more stable than O2F2. जो भी हमारे फ्लोराइड्स होते हैं, फ्लोराइड्स दे आर वेरी गुड. फ्लोरीन का ही हम डिस्कस खत्म करेंगे. जो भी हमारे पास फ्लोराइड्स होते हैं, फ्लोराइड्स दे आर वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स.
दे आर फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। मतलब किसी भी कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल xenon डाइफ्लोराइड है, इट्स अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल xenon टेट्राफ्लोराइड है, इट्स अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास O2F2 है, इट्स अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। दीज आर फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, दे आर वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। आप फिर से ज्वाइन करो, मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। दे आर वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। These are very good fluorinating agents. Now, what's a fluorinating agent? Fluorinating agent किसको कहते हैं? फ्लोरिनेटिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंपाउंड है प्लूटोनियम है, अगर हम इसको ट्रीट करेंगे विद O2F2, तो यहाँ से ये फ्लोरीन डोनर है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट मींस फ्लोरीन डोनर, so it will give fluorine, it will form PuF6, so we over here we will get PuF6। अब फिर से अभी ज्वाइन करना, अभी 1 मिनट है, फिर से आप